ہم آپ کو بہار نستعلیق چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اپنی اور اپنے بچوں کی خوبصورت اردو انگلش لکھائی کے لیے اور اپڈیٹ رہنے کے لیے بہار نستعلیق چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے طریقت مشق، یعنی مشق کس طریقے سے کی جائے۔ اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خطاطی کا بڑا شوق تھا، جو پرانے لوگ ہوتے ہیں جن کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، زمانہ ابتدائی طالب علمی کا، تو ہمیں بڑا شوق تھا خطاطی کا، اور کچھ کہتے ہیں ہمیں ابھی بھی بڑا شوق ہے جی خطاطی کا۔ تو شوق ہونا چاہیے، اچھی چیزوں کا شوق سب کو ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ تو اس میں ہم یہیں سے شروع کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہو گئی شوق، کہ ہمیں شوق ہے۔ اب جو شوق ہے اس کی خوراک ہے، شوق کی خوراک ہوتی ہے پروگرس یا امپرومنٹ کہہ لیں۔ اب پروگرس یا امپرومنٹ آئے گی تو شوق کو خوراک ملے گی۔ اگر آپ کے کام میں پروگرس نہیں ہے، امپرومنٹ نہیں آتی ہے، تو آپ کا شوق آہستہ آہستہ مر جائے گا۔ تو شوق کو خوراک دینے کے لیے اس کو پروگرس دینی پڑتی ہے، امپرومنٹ کرنی پڑتی ہے۔ اب نیکسٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امپرومنٹ یا پروگرس کیسے آئے۔ تو پروگرس اور امپرومنٹ کے لیے پھر آگے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے، پروگرس جو ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کا انحصار ہوتا ہے محنت پر یا مشق پر، کہ اگر آپ جتنی محنت کریں گے، مشق کریں گے، کتنی کریں گے اور کس طریقے سے کریں گے، تو آپ جتنی محنت کریں گے، مشق کریں گے، اچھے طریقے سے کریں گے، جو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ مشق کرنے کا اچھا آسان طریقہ کیا ہے جس سے آپ جلدی خطاط بن سکتے ہیں۔ تو وہ محنت جو ہوتی ہے، مشق ہوتی ہے، وہ آپ کے کام میں پروگرس لاتی ہے۔ اچھا، اب جو محنت ہوتی ہے اس کے یا مشق جو ہوتی ہے وہ آگے دو سلسلوں میں ہوتی ہے۔ ایک تو محنت مشق ہوتی ہے باصلاحیت، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے وصف دیا ہوا ہوتا ہے خطاطی کا، صفت ایکسٹرا آرڈنری کر کے دی ہوئی ہوتی ہے، وہ باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے کہ جو صرف محنت کے بل پر امپروو کرتے ہیں اور آگے جاتے ہیں۔ تو محنت کرنا تو اللہ پاک نے ہر بندے کے بس میں، اختیار میں دیا ہوا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ہو جی میں محنت نہیں کر سکتا تھا، محنت کر کے جا سکتا ہے۔ اب محنت اور جو مشق ہے، یہ اگر تو باصلاحیت بندہ کرے گا تو اس کے کام میں پروگرس جلدی آئے گی، اس کے شوق کو خوراک جلدی ملے گی اور اس کا شوق جلدی آگے بڑھے گا۔ اور جو محنت والا آدمی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسٹرا آرڈنری صلاحیت نہیں دی ہے، صرف صلاحیت دی ہے، تو اس بندے کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی، اور وہ بندہ زیادہ محنت کر کے بھی اپنے پروگرس کر سکتا ہے اور اپنے شوق کو خوراک دے سکتا ہے اور اپنے شوق کو آگے لے جا سکتا ہے۔ تو اس میں یہ کوئی عذر نہیں ہے کسی کا ہونا چاہیے کہ وہ مجھ میں صلاحیت نہیں تھی یا میں محنت نہیں کر سکتا تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعوے کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ میں نے تمہارے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے مسخر کر دیا ہے۔ ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا دعویٰ ہے ہمارے بارے میں کہ انسان تو کچھ کر، تو جو کرنا چاہتا ہے تو کر لے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے تیرے لیے اس میں کچھ رکاوٹیں رکھی ہوئی ہیں، تو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے تمہاری محنت پہ، شوق پہ، لگن پہ اور اخلاص پہ۔ اب دیکھیے کہ یہ جو محنت اور صلاحیت اور مشق جو ہوتی ہے، یہ باصلاحیت ہو یا محنت ہو، دونوں صورتوں میں آپ سے ٹائم مانگے گی، ٹائم کا مطالبہ کرے گی کہ آپ نے ٹائم نکالنا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر تو آپ کا شوق پکا ہے، شوق راسخ ہے، پکا ہے، تو پھر آپ یہاں پہ آ کے اس کے لیے ٹائم نکال لیں گے۔ اور ٹائم کا جب وہ مطالبہ کرتا ہے تو ٹائم آپ سے کسی بھی دوسری چیز کو چھڑوا دے گا، دوسری چیز کو، دوسرے شوق کو یا دوسرے کام کو وہ آپ سے چھڑوا دے گا۔
कोई एक काम आप छोड़ेंगे तो आपको लिए टाइम निकलेगा मेहनत के लिए, मश्क के लिए। अब देखें, अगर तो आपका शौक़ पक्का है तो आप किसी दूसरी चीज़ को छोड़ सकते हैं और वो चीज़ छोड़कर आप टाइम निकाल सकते हैं। अब टाइम में आप मेहनत और मशक्क़त और मश्क कर सकते हैं। और अगर ये मेहनत और मश्क किसी तरीके पर हो, उसकी जो तरीक़त है वो अच्छी हो, खूबसूरत हो, आसान हो, तो आपका जो काम में वो प्रोग्रेस जल्दी आएगी। और प्रोग्रेस जितनी जल्दी आएगी वो आपके शौक़ को आगे लेकर जाएगी। और आप जिस भी फ़न में हैं, ख़ताती में या ख़ताती के अलावा, ये फार्मूला है पूरे का पूरा जो हर चीज़ पे अप्लाई होगा। तो आपका शौक़ जो है वो आपको आप बहुत आगे ले जाएगा, बहुत दूर तक ले जाएगा। तो इस ज़िमन में, इस बैकग्राउंड के साथ आज हमारा सब्जेक्ट ये था कि मश्क का तरीका क्या है, मश्क की तरीक़त क्या है। तो उसके लिए अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम मश्क कैसे करें, किसी तकलीद में मश्क कैसे करें। तो उससे पहले मैं आप दोस्त अहबाब से ये गुजारिश करूँगा कि अगर आप लोगों ने बहार नस्तालिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आपको जितने भी मुफीद मालूमाती यूज़फुल वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। तो अभी हम इसके दूसरे मरहले की तरफ बढ़ते हैं। ये एक क्लियर प्लास्टिक बैग है, किताबों की दुकानों से आसानी से मिल जाता है। ये देखिए, इसके एक साइड पे ग्राफ बना हुआ है और दूसरी साइड पे ट्रांसपेरेंट है। ये देखिए ट्रांसपेरेंट है। तो अभी इस पे अगर हम बगैर कुछ इसके किए अगर इस पे हम मश्क करें तो ये देखिएगा, मैं लिखने वाला हूँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस पे अगर मैं लिखता हूँ तो ये इंक इसके ऊपर ठहरती नहीं है। अब ये देखिए, मैंने एक नुक्ता लगाया और नुक्ते की पोजीशन देखिएगा, इसने पूरा नुक्ता कत के साथ नहीं लिखा। अब मैं एक और लफ्ज़ लिखता हूँ। जैसे ये देखें, मैं एक मद बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं भले ही जितनी मर्ज़ी अच्छी बनाऊँ। ये आप देखिएगा नज़दीक, ये इसका कलम का किनारा जो है वो इंक को नहीं पकड़ रहा है और लफ्ज़ अपनी असल शक्ल में नज़र नहीं आ रहा है। तो अब हम इसके साथ एक प्रोसेस करते हैं कि हम इसकी जो दूसरी साइड है, ये कौन सी साइड है, ये हमारी ग्राफ वाली साइड थी। हम इसकी दूसरी जो साइड है उसके ऊपर हम रेगमार करते हैं। और रेगमार कौन सा करते हैं, रेगमार आपको हार्डवेयर की जो दुकान होती है वहाँ से आपको वाटरप्रूफ रेगमार मिल जाएगा। ये देखिएगा, वाटरप्रूफ सिलिकॉन कार्बाइड पेपर A1 ये, और ये इसका नंबर है जो आपने इस नंबर के अलावा नहीं लेना, P1000C। ये रेगमार होता है और ये ऐसे है कि जैसे देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसकी नीचे वाली शक्ल है और ये कितनी स्मूथ है। और अगर इसके अलावा आप कोई और रेगमार ले लेंगे किसी और नंबर का तो वो देखें, ये देखें कितना रफ़ है और ये आपके फ़ाइल को ज़्यादा ख़राब कर देगा, ज़्यादा रफ़ कर देगा। तो वो लिखने तो हो जाएगा लेकिन आपसे फिर साफ़ नहीं होगा। तो ये जो रेगमार है ये आपने यूज़ करना है, जिसका 1000 नंबर है, वाटरप्रूफ रेगमार। अभी हम ये करते हैं कि इसकी जो दूसरी साइड है, प्लेन साइड जो है ट्रांसपेरेंट, इसके ऊपर हम इस तरह से इसको रेगमार कर लेते हैं। और रेगमार करने का तरीका ये है कि आप इसको पहले तो इस तरह से हॉरिजॉन्टली लगाएं, फिर आप इसको ऊपर नीचे करके लगाएं हल्के हाथ के साथ, और फिर आप इसको इस तरह से एंगुलर लगाएं इस तरह से, फिर आपको इस तरह से इसको एंगुलर लगाएं और फिर आप इसको आखिर में इस तरह से कर दें। और ये बहुत ढीले हाथ के साथ आपने इसको थोड़ा रेगमार करना है। बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपका जो पेपर है बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाएगा, तो फिर वो आपसे लिखने तो हो जाएगा लेकिन साफ़ करते हुए दिक्कत होगी आपको। अब ये हमने इस साइड को रेगमार कर लिया। अब इसके अंदर ये देखें, मैंने कुछ कागज़ डाले हुए, ये मश्क डाली हुई है। ये किबला हाफ़िज़ मोहम्मद यूसुफ सदीदी अलैहि रहमा उनके हीरे मोती हैं जो मैंने बीच में डाल लिए हैं ताकि मैं इनको फॉलो करूं और आप लोग भी इनको फॉलो करें। तो अब देखें, मश्क का तरीका ये है कि आप कलम लें और एक कलम बनाएं और जो कलम इस लिखाई के, इस मश्क के साइज़ की हो। अब देखें, यहाँ पे देखें, ये मैं नुक्ते पे कलम रख रहा हूँ, देखें इसी साइज़ की है। फिर यहाँ पे मैं रख के चेक करता हूँ, यहाँ पे कलम का एंगल ऐसे होना चाहिए। यहाँ पे देखें अपने पूरे कत में, और यहाँ पे देखें ये पूरी कलम। आप इतने कत की कलम बना लें। अब कलम बनाने के बाद आप इसके ऊपर मश्क करें।
मश्क का तरीका ये है कि आप इन लफ्ज़ों के ऊपर ऊपर आपने लिखना है और आपकी ऊपर वाली नोक और नीचे वाली नोक इन ऊपर और नीचे वाली लाइनों से बाहर नहीं जानी चाहिए। अब मैं एक लफ्ज़ जो है वो आपके तजर्बे के लिए मैं लिखता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि इससे कितना फ़र्क पड़ता है। आप बहुत ध्यान से करेंगे। ये देखें, इसके ऊपर रखा। अब आप इसके ऊपर कलम ऐसे चलाएं कि आपने कलम की ऊपर और नीचे वाली नोक का ख्याल रखना है कि कहीं वो बाहर ना चली जाए। आप बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर लेकर आएं। फिर देखें, इस तरह से कलम रख कर आप इसको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर फॉलो करें ताकि आपकी कलम जो है वो इन लफ्ज़ों से बाहर ना जाए। आप शुरू में करेंगे तो कलम आपके कंट्रोल में इतना नहीं होगी और आपके कलम इन लफ्ज़ों से बाहर जाएगी, लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता मश्क करते रहेंगे तो फिर आपकी कलम कंट्रोल में आ जाएगी। और ये देखिए, ये क्या है, ये बिल्कुल वही तरीका है कलम का, कैसे कि कलम जो है वो कहाँ से किस तरह से चलती है। ये देखिए, आपने इसका ख्याल रखना है कि बिल्कुल ये आपने लफ्ज़ बनाया आहिस्ता आहिस्ता, शुरू में थोड़ा सा ख़राब होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि इससे हमें पता चलता है कि हमने कलम को कहाँ से किस तरह से रखना है। अब देखें, ये एंगल हमें बताएगा कि हमने कलम को कैसे रखना है, इसको कैसे हल्का सा जुम्बश के साथ घुमाना है, और फिर इसको देखें टेढ़ी कलम के साथ कितना लेकर आऊँ। दोस्त अब आप मोटा कर देते हैं इसको जब अपनी मश्क करते हैं, तो इसे कहते हैं तकलीद में मश्क करना, यानी किसी उस्ताद के नक्शे कदम पे पूरा नक्शे कलम पे पूरा फॉलो करना कि ये उस्ताद जो हैं जिनको मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ ये कहाँ से कलम कैसे रखते हैं, और कलम का एंगल तिरछा होता है, सीधा होता है। तो ये साथ साथ देखें, आप ऑब्ज़र्व करते जाएं कि ये कैसे होता है। तो इस तरह से आपकी जो मश्क है ये काबिल तकलीद हो जाएगी, और जो काबिल तकलीद मश्क होती है ये वो आपको ज़्यादा आगे लेकर जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम बचपन में, ये देखें, जैसे हम बचपन में तख्तियाँ लिखते थे और कच्ची पेंसिल से हमें असाज़ा लिख कर देते थे और हम उस कच्ची पेंसिल के लिखे के ऊपर कलम से लिखते थे, तो इसके बावजूद भी लिखाई हमारी बहुत अच्छी हो जाया करती थी। और ये तो तरीका उससे भी एडवांस है कि हमारे पास नीचे ख़ताती ऑलरेडी लिखी हुई है और हमने तो उस ख़ताती को ही फॉलो करना है, जिसमें हमें बिल्कुल बाकायदा पता है कि कलम कहाँ से मोटी करनी है, कहाँ से पतली करनी है, कहाँ से बहुत बारीक करनी है। तो इस तरीके से अभी देखें, मैं इस कागज़ को बीच में से निकालता हूँ, तो ये मश्क वाला कागज़ देखें, ये मैंने निकाल दिया। अब आप इस मश्क को देखें, ये तकलीद में मश्क है। आपके लफ्ज़ इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बनाएंगे तो इस तरह से आपके लफ्ज़ खूबसूरत हो जाएंगे। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये कि आप मुख्तलिफ़ खतूत की मश्कें जो हैं वो यहाँ पे रख सकते हैं। एक कागज़ निकालें, दूसरा रख लें, उस साइज़ की कलम से मश्क करें, तो आप जो बोरियत है आपकी, एक खत लिखते लिखते आप उकता जाते हैं, कागज़ चेंज कर लें, कलम चेंज कर लें, दूसरा शुरू कर दें। अब इसका दूसरा ये आसान फार्मूला ये होता है कि आपको कागज़ संभालने की दिक्कत नहीं होती। आप कोई भी ड्रॉपर ले लें, उसमें थोड़ा सा पानी लेकर इसके ऊपर थोड़ा सा पानी 2-3 कतरे गिराएं और किसी भी पाक और साफ़ कपड़े के साथ, इसका बहुत ख्याल रखना है कि कपड़ा सिर्फ साफ़ नहीं होना चाहिए बल्कि पाक भी होना चाहिए, लफ्ज़ों के तकद्दुस का ख्याल रखना है। तो आप ये इसको कपड़े के साथ साफ़ कर लें, कोई भी कपड़ा ले लें, तो आप इसको ये साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद आपके ये फिर से लिखने के लिए तैयार हो जाएगा। इसको थोड़ा सा खुश्क कपड़ा लगा लें या थोड़ी देर के लिए ऐसे रहने दें। ये अब आपका खुश्क हो गया है। ये अब आप इस पर फिर से लिखना शुरू कर दें। ये साफ़ हो गया। आपको कागज़ जो है वो संभालने की जो आपकी दिक्कत और मशक्क़त थी उससे बंदा बच जाता है। अगर आप इस तरह से हस्तालिक कर सकते हैं, आप इसी तरह से अगर आप सुलस करना चाहते हैं तो आप ये फाइल के अंदर ये सामी साहब के लिखे हुए हैं
सबील का काम लिखा हुआ है। आप इस तरह से ले लें, इसको नीचे रखें। इसको नीचे रखने के बाद आप इतने ही साइज़ की आप कलम ले लें। ये देखें, इतने साइज़ की कलम ले लें आप। अब आप इसके ऊपर मश्क करें, जैसे असातिज़ा ने लिखा है कि किस किस लफ्ज़ को कहाँ कहाँ से कैसे कैसे लिखना है। ये देखें, आप इस तरह से मश्क कर सकते हैं इसके ऊपर। और इस तरह से भी देखें, कोई भी लफ्ज़ लिखें, फ़र्ज़ करें आप इस तरह से मश्क करें। और इसमें भी ये दूसरा फ़ाइल कवर मैंने रखा हुआ है ताकि थोड़ी सी टाइम की बचत हो जाए। और ये आप फ़र्ज़ करें, ये आप लिखते हैं, आप सुलस की आपने इसी तरह से मश्क कर ली काफ़ी देर तक। तो आप इसी तरह से थोड़ा सा पानी गिराएं, 1-2 कतरे, और बिल्कुल इसी तरह से पाक और साफ़ कपड़े के साथ आप इसको साफ़ कर दें। तो ये आपका फिर से लिखने के लिए, फिर से मश्क करने के लिए और पूरी तकलीद में मश्क करने के लिए दोबारा से तैयार हो गया है। तो ये एक आसान तरीका था। अब इस तरह से मश्क करने के बाद ये तो हो गया, आप मश्क इस तरह से करते रहते हैं। अब आप जब अपनी मश्क करने लगें तो भी आपके लिए ये कागज़ के तौर पर काम करेगा। अभी आप देखें, ये मैंने उसमें से कागज़ निकाल दिया जो नस्तालीक वाला था हाफिज़ साहब का। अब आप इसके ऊपर अपनी मश्क कर लें, जैसे आप अपनी मश्क करते हैं, कागज़ पे करते हैं, आप बिल्कुल वैसी मश्क करें। अभी देखिएगा, पूरे लफ्ज़ उसी तरह से बनेंगे जैसे आप कागज़ पे लिख रहे हैं। अभी देखिए, कोई भी लफ्ज़ ले लें आप। ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी जितने इसबाक हैं वो आप लोगों के साथ अपनी रूटीन में चल रहे हैं अपनी डिटेल के साथ। ये वैसे समझाने के लिए आपको मैं कुछ लफ्ज़ डालकर बता रहा हूँ कि देखिएगा कि इसमें कोई फ़र्क नहीं आता। बहुत आसानी के साथ, बहुत रवानी के साथ और कागज़ों को संभालने की मशक्क़त से बचने के साथ आप बहुत आसानी के साथ इस तरह से कर सकते हैं। अब ये देखिए, इन लफ्ज़ों को देखें, अपनी पूरी जैसे कागज़ पे लिखे हुए हैं। अब आप इनको बिल्कुल उसी तरह से, फिर ये देखिए, आपने थोड़ा सा पानी गिराया और उसके बाद इसको आप ये साफ़ कर लें। ये आपका कागज़ फिर से लिखने के लिए। तो इस तरह से लिखने की जो मश्क होती है, इसे तकलीद में मश्क करना कहते हैं, कि आप किसी भी उस्ताद को फॉलो करते हुए उनके जो तरीक़त है उस पर आप मश्क कर रहे हैं। और आप जितनी मश्क करेंगे उतना ही आपके काम में इम्प्रूवमेंट आएगी। ये इसका दूसरा तरीका था। आप यूँ भी कर सकते हैं कि आप एक फार्मिका ले लें। फार्मिका, अब जो कुछ पुराने लोग हैं हमारे दौर के या हमारे से पहले के, वो तो फार्मिका समझते हैं कि क्या होता है। तो फार्मिका ये होता है कि जो लेमिनेशन शीट टाइप होती है, जिस तरह पहले टेबल्स के ऊपर इस तरह से देखें, टेबल की लकड़ी होती थी और उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सी शीट गम के साथ, ग्लू के साथ लगी हुई होती थी, तो जिसको कपड़े के साथ आसानी के साथ साफ़ कर लिया जाता था। तो पहले, इससे भी बहुत पहले इस तरह की शीट ये टेबल पे, इससे तो काफ़ी लोग वाकिफ़ होंगे। ये इस तरह की एक शीट होती है जो मेज़ के ऊपर लगी हुई होती है, तो इसको फार्मिका कहते हैं। और ये इस टेक्सचर में भी होता है, प्लेन टेक्सचर में भी होता है, वाइट भी होता है, मुख्तलिफ़ रंगों में होता है। तो आप एक फार्मिका की शीट ले लें, लेमिनेशन शीट ले लें, और उसके ऊपर भी आप बिल्कुल इसी तरीके से रिगमार करेंगे। उसको 1000 वाला जो रिगमार है जो आपको बताया, वो वाला रिगमार कर लें, हल्के हाथ के साथ इसको रिगमार कर लें। अब आप इसके ऊपर भी मश्क कर सकते हैं। अब आप इसके ऊपर लिखें। अभी देखें, अगर इसको रिगमार के बगैर लिखा जाए तो वही जैसे प्लास्टिक शीट की हमारा एक्सपीरियंस हुआ था, इस पर भी वही एक्सपीरियंस होता है। और जब हम इसको रिगमार करके लिखते हैं तो ये बिल्कुल वही वाला इफ़ेक्ट देता है।
اب دیکھیں میں اس میں کچھ لفظ لکھنے والا ہوں، یہ دیکھیے میں تھوڑا سا اس کو کلوز کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے یہ اپنے پورے ٹیکسچر کے ساتھ اور فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ذرا نرم ہوتا ہے، پیپر کے ذرا زیادہ نزدیک ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ اس پہ مشق کریں، جتنے بھی الفاظ کی مشق کرتے ہیں۔ اب یہ مشق جو ہے یہ آپ کی اس تقلید والی مشق کے بعد کا پروسیس ہے کہ اب آپ نے جو اپنی مشق کرنی ہے، انڈیپینڈنٹ مشق کرنی ہے، بغیر کسی سہارے کے اور بغیر کسی مشق کی کاپی کیے، تو آپ اس پہ مشق کر سکتے ہیں۔ آپ جیسے بھی لکھیں، اس میں بھی وہی آسانی ہے کہ اگر آپ سے کچھ لفظ غلط ہو جاتے ہیں یا آپ کی مشق پوری ہو جاتی ہے تو آپ اس کے اوپر تھوڑا سا پانی گرائیں، 1-2 قطرے پانی کے گرائیں، اور اسی طرح سے پاک اور صاف کپڑے کے ساتھ آپ اس کو صاف کر لیں، ایک دوسرا کپڑا لے لیں یا اسی کپڑے کی تہہ بدل لیں، تو یہ آپ کا شیٹ جو ہے یہ دیکھیے یہ بالکل صاف ہو گئی۔ اب آپ اس پہ دوبارہ سے مشق کر سکتے ہیں۔ یہ بھی طریقہ ہے، آپ اس طریقے سے بھی مشق کو کر سکتے ہیں۔ جتنی مشق کریں کاغذ سنبھالنے کی مشقت سے بچ جائیں گے، اور مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ اصل جو طریقہ ہے جو زیادہ پریفریبل ہے وہ یہی ہے کہ آپ پلاسٹک بیگ میں آپ مشق رکھ لیں، اور جو لوگ تختیاں کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بات ترجیح والی ہے کہ وہ اس طرح سے کوئی بھی سبق لے لیں، وہ اپنا ایک سبق لے لیں، اس میں سبق ڈالیں، اور جیسے ہم بازار سے اپنی اسناد جو ہوتی ہیں، سندیں ہوتی ہیں، سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، اس کو ہم پلاسٹک کوٹنگ کرواتے ہیں، آپ اس کو ہارڈ پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں، وہ پوری ہارڈ شیٹ بن جائے گی، اور اس ہارڈ شیٹ کے اوپر پلاسٹک کوٹنگ جو ہوتی ہے، جیسے ہماری سندیں ہوتی ہیں میٹرک ایف اے بی اے کی، آپ اس کو ہارڈ پلاسٹک کوٹنگ کر لیں، ڈھیلے والی نہیں، اس میں 2 ہوتی ہیں، ایک اس طرح سے ڈھیلے والی ہوتی ہے اور ایک بالکل سخت والی ہوتی ہے۔ جو سخت والی ہوتی ہے وہ والی کر لیں، اس کے اوپر آپ اسی طرح کا 0 کا رگمار کر لیں، 1000 نمبر والا جو رگمار ہے وہ کر لیں واٹر پروف، تو وہ آپ کی پوری تختی آ جائے گی۔ آپ اتنے سائز میں قلم لے لیں، الف کی پریکٹس کریں، مد کی کریں، بے، تے، جیم، دال، رے، ساری پوری کی مشق کریں، جتنی بھی مشق کریں، پھر اس کو صاف کریں، پھر مشق کریں، وہ آپ کی پہلی تختی کی پوری مشق آ جائے گی۔ اور جب آپ وہ ختم ہو جائے پہلی تختی، تو آپ دوسری تختی کو پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں، بے کی تختی کو، اور بے کی تختی کی آپ مشق کریں، جتنی بھی مشق کریں گے۔ تو وہ ایک دوسرا طریقہ وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے اسباق میں مشق کرنا چاہ رہے ہیں، سبقوں سے علاوہ مشق نہیں کرنا چاہ رہے، تو آپ اپنے سبق کی پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں، اور اس کے اوپر جو ہے آپ مشق کرتے رہیں، جتنی مشق کریں، جب بھی ٹائم ملے، جتنا بھی ٹائم ملے۔ تو یہ بنیادی طریقہ ہے، اور یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے قلم کو کس کس رخ پہ کہاں پہ رکھنا ہے، کس طرح سے رکھنا ہے، تو اس سے ہمارے کام میں بہت جلدی امپرومنٹ آتی ہے۔ تو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے طور پر بیٹھ کے مشق کرتے رہتے ہیں، جیسے آپ اس طرح سے تقلید میں مشق نہیں کرتے، آپ اسی طرح سے کاغذ رکھتے ہیں، فرمیکا رکھتے ہیں، اور بیٹھ کے مشق کرتے رہتے ہیں، بے شک آپ 4 گھنٹے 6 گھنٹے مشق کریں، نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک غلطی کر رہے ہیں، آپ وہ غلطی دوسری بار کر رہے ہیں، تیسری بار کر رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا، اور آپ ایک غلطی کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، اور اپنی غلطی کو پکا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ ہوتا ہے یہ آپ کو غلطی کرنے سے بچاتا ہے، اور اپنی غلطی کو بار بار ریپیٹ کرنے سے بھی بچاتا ہے، کیونکہ اب جب آپ اچھی لکھائی کے اوپر بار بار فالو کریں گے، اچھی لکھائی کے اوپر بار بار فالو کریں گے، تو آپ کا ہاتھ اسی طرح کا ہو جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو آپ بہت جلد اس طریقے سے آپ خطاطی کو سیکھ سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ، روانی کے ساتھ۔ تو اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو سے فائدہ ہو رہا ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے چینل بہار نستعلیق کو ضرور سبسکرائب کریں،
और घंटी का बटन भी दबाएं ताकि आपके पास हमारी सारी वीडियोस और मालूमात पहुंचती रहें।